Hello, good evening, everyone. Shall we start the lecture? मैम अभी ये वीडियो Hello? दिखा रही है, इस वीडियो दिखा रही है, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन दिखाएगी, उसके बाद आप स्टार्ट करना, ठीक है ना? आप भी देख Okay, लो। ओके ठीक ठीक. कौन प्रेजेंट? मानसी, हाँ हाँ बोल। कौन कर रहा है अभी? हाँ लक्ष्मी मैम कर रही है। मैम आ रही है लक्ष्मी मैम। लक्ष्मी मैम चले गई क्या? हाँ, स्टार्ट करूँ क्या? यस मैम, मैं आप स्टार्ट कर रही इंट्रोडक्शन से, तू करते जाना मैम जैसा बोली, ठीक है? रिकॉर्डिंग हाँ. स्टार्ट कर। चालू। Nowadays, the operation theater has become a prime place in the hospital. The surgeries which were done early, now it has become very advanced, and it has caused the revolution in the field of surgery and anesthesia because of lot of advancement in surgical procedures and anesthesia technique. So the planning of operation theater has to be very precise. The planning depend on the following factors. What are the factors on which the planning depends? First thing is safety. Like operation theater is a vulnerable place where disaster can happen, and at the same time a patient can get a second life. So the safety of the patient, of the doctor, of the hospital staff. And once the patient is anesthetized, we have a very less of the time to waste. So all the resources should be available and easily accessible. And the working condition should be comfortable for all the hospital OT staff, doctor and anesthetist. And first and foremost important thing is
there has to be a high standard of asepsis, because if we are doing surgery, there should not be any infection in the wound in the operation site. Otherwise, the purpose of the surgery will not be solved. Okay? Everyone listening to me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now, like the OT operation theater can be of like in a hospital of two types. मीटिंग है One ना is, hello, हाँ क्या हुआ? Operation theater could be centralized or decentralized. Centralized operation theater means like it is the place where all the type of theaters are there, like cardiac OTs, neuro OT, obstetric OT, ortho OT, and in some hospital it is decentralized, like it is department wise. Where the orthopedic department, there is ortho OT, that type of thing. But usually the centralized OT is preferred. Can anybody tell me why the centralized OT is preferred? Hello, can anybody tell me Hello? why the centralized OT is preferred? Because of centralized OT, equipment cost Easy to manage. is Right. means Yes. instruments and everything. If they have to make separate OT for every department, all instruments, then space required, everything will be engaged. And if there is only centralized OT, then everything Cost will be effective. in. Yes, and there will be saving of the resources, manpower also. Like if the 2-3 OTs are connected, the OT staff can can be shared. Even the anesthetists, like if a regional anesthesia का एक case यहाँ पे लिया है, तो एक minor case यहाँ पे ले सकते हैं, है ना? So that's the advantage of keeping the OT centralized. Okay. So the OT has got different zones, and the location of the OT. The location of the OT should be such that it should be easily accessible. Second thing, it should be away from the places from where it can get infection, excess of noise, excess of light, dust, and it should be away from the general traffic. मतलब जो ओपीडी पेशेंट आते हैं या फिर और दूसरे पेशेंट आते हैं, तो वो ऑपरेशन थिएटर उससे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, है ना? It is like it should be, if a multi-storied building, it should be on the upper floor, not on the ground floor. Like earlier we have discussed like emergency, casualty, ICU, they can be kept on the ground floor, but operation theater can be kept in the upper floor of the multi-storied building. Okay? Yes, Is that What is the reason for keeping it OT on upper stories? Any particular reason? the reason being like जैसे जनरल पब्लिक आ रही है, तो उसके साथ साथ इन्फेक्शन रहता है, और लाइक दूसरा नॉइसेस ज्यादा होती है ना? और कोई भी थरोफेयर ओटी का जोन ऐसा रहता है ना कि वहां पे सेलेक्टेड पब्लिक आना चाहिए, कोई भी Quiet मतलब environment. हाँ. So and it is a specialized zone. It's not a general this thing. OPD और वो सब चीजें कैसी है कि जनरल पब्लिक के एक्सेस में रह सकती हैं, पर ऑपरेशन यूजुअली कैसा रहता है? इट इज यूजुअली डिसाइडेड रहता है, इलेक्टिव हो सकता है या इमरजेंसी में भी है, तो पेशेंट इज यूजुअली बीइंग अकम्पनीड बाय द स्टाफ and already like anesthetist, surgeon, they reach the area. उसको ऐसा मतलब जनरल पब्लिक को एक्सपोजर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना? ठीक है. हाँ. और उसमें भी अलग अलग जोन्स रहते हैं, लाइक ऐसा डायरेक्ट एक दरवाजा खुले कि सीधा ओटी वैसा नहीं रहता है ना? जैसे एक मेन डोर रहता है, उसका जोन रहता है, वहां पे पहले स्टाफ चेंज होगा, कुछ वेटिंग रूम है, एडमिनिस्ट्रेशन रूम है ना?
मेडिकल कॉलेजेस में आपने देखा होगा, हाँ, anybody has worked in the hospital. मैम So क्वेश्चन था मैम, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बोलिए। मैम। मैं पूछना था कि जो LMO है, OPD, ICO वार्ड, OT, ये सब में क्या डिफरेंस होता है किस चीज में? मैम? जो होता है मतलब अपना क्या बोलते हैं, OT हो गया है, ICU वार्ड और OPD, ये सब में डिफरेंस, देखो LMO। LMO यानी RMO, that is RMO, that is registered medical officer. देखिए पेशेंट जैसे आता है ना, तो पेशेंट पहले एक जो भी मेडिकल कॉलेज में यूजुअली CMO रहता है, जो एक जनरल डॉक्टर रहता है, MBBS डॉक्टर हैगा, जो भी है, वो पहले पेशेंट को देखेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है ना, फिर ही तो स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा ना। या फिर पेशेंट एक्सीडेंट का है या और कुछ है, MLC है, तो वो वहीं पे रजिस्टर होता है ना, ये इमरजेंसी वाला चीज है। और जनरल जो इलेक्टिव आवर्स में आते हैं पेशेंट, जैसे OPD में दिखाने, दैट इज कॉल्ड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसे हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं पेशेंट का, है ना, सॉरी Yes, ma'am. मतलब जो जनरल पब्लिक अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को दिखाती है, दैट इज OPD, मतलब जो है ना। जनरल वार्ड में जो रहता है वो। नहीं, जो बाहर से आते तो हैं नहीं। पेशेंट का जो डॉक्टर का कंसल्टेशन करते, इन्वेस्टिगेशन करवाते, एक्सरे करते, दवाई लिख देते डॉक्टर जैसे और कि चले मैं जाते। मेरा क्वेश्चन एक और था कि जो जनरल वार्ड रहता है उसमें मतलब सब, मतलब उसमें ऐसे लोग को ही रख सकते हैं जो मतलब जिसको डिसीज ऐसे ना हो, जो इन्फेक्शन वाली हो, जैसे कोविड वाली, उनको जनरल वार्ड में नहीं रख सकते क्योंकि। हाँ, उनको नहीं, नहीं रख सकते, हाँ। उनके लिए आइसोलेशन वार्ड रहेगा ना। मतलब यस मैम। जो भी इन्फेक्शियस पेशेंट रहते हैं, दे कैन नॉट बी केप्ट अमंग अ जनरल पेशेंट, तो उनके लिए अलग आइसोलेशन। जैसे पहले ट्यूबरक्लोसिस और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज थी, तो उसके लिए जैसे चिकन पॉक्स वगैरह था, तो उसके लिए आइसोलेशन लगता था, तो वो एक दोज पेशेंट कैन नॉट बी केप्ट इन अ जनरल वार्ड, है ना। और जैसे ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे जो अफोर्डिंग पेशेंट है, वो जनरल वार्ड में नहीं रहना चाहेगा, वो अपना पर्सनल रूम चाहेगा, डिलक्स रूम चाहेगा, AC रूम चाहेगा। तो हॉस्पिटल इज लाइक समवॉट, जो रूम्स में है वो तो पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट? ओके मैम, थैंक यू मैम। An operation theater is like the place where the operation is being performed, है ना। तो वो एकदम असेप्टिक जोन रहता है, तो मतलब उसमें 2-3 लेयर्स के बाद में तुम OT में एंटर कर सकते हो, ऐसा रहता है। मतलब पहले तुम चेंज करना है तुमको, या जो सिस्टर लोग रहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाली और बाकी सब चीजें, वो पहले वो रूम में रहेंगी। फिर उसके बाद में जैसे पेशेंट एक बार रिकॉग्नाइज हो गया, स्टाफ ने लेके आया, तो एक प्री ऑपरेटिव जोन रहता है। मतलब ऑपरेशन के पहले पेशेंट को वहां पे 2-3 बेड्स रहते हैं, उसमें पेशेंट को चेंज कर देते, पेशेंट का जो ये रहता है ड्रेसअप। मतलब हाँ, ड्रेसअप चेंज कर देते हैं, जो हॉस्पिटल का ड्रेसअप है वो पहनाते हैं, है ना। और पेशेंट का पूरा रिकॉग्नाइज करके वो फिर उसको वो रूम में रखते हैं। और एनेस्थेटिस्ट पहले प्री ऑप चेकअप भी करते हैं कि पेशेंट को कुछ और दूसरे प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ECG है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं, है ना। एकदम डायरेक्ट OT में कैसे लेंगे ना पेशेंट को, पहले सब, नहीं तो फिर एरर का प्रॉब्लम आता है, कुछ अपन आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम, पेशेंट को पहले से कंट्रोल्ड है कि नहीं सब प्रॉब्लम, या फिर उसको कुछ और डिजीज है क्या, ये सब चीजें पहले ही डिटेक्ट करना चाहिए बिफोर टेकिंग द पेशेंट टू द सर्जरी। सो दैट इज डन इन द प्री ऑपरेटिव रूम। गॉट इट? ओके मैम, थैंक यू मैम। That is called the clean room, clean zone. And then after that, even after surgery, some patient they are kept in the recovery room for some time, like 2-3 hours, 4 hours. पेशेंट पूरा कॉन्शियस हो गया, उसको ऑक्सीजन नहीं लग रही, सब कुछ अच्छा है, तभी अपन वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो दैट इज, सम बेड्स आर केप्ट फॉर दैट पर्पस आल्सो, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। And then the third zone comes, that is the sterile zone. Sterile zone is the exact operation theater, है ना, जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, है ना, जहाँ पे OT टेबल रहता है, OT लाइट रहती है ना। और उसके पहले उसके सामने एक स्क्रब रहता है। Anybody know what is scrubbing for the surgery? yes ma'am. स्क्रबिंग यानी क्या होता है?
जैसे कोई डॉक्टर बोलता है आई एम स्क्रब फॉर द सर्जरी, सो व्हाट इज दैट? एक्चुअली वो कैसा है कि सर्जरी के पहले हम लोग जो चेंज करते हैं, पहले तो ओटी ड्रेस चेंज करेंगे, उसके बाद में पूरा जो हैंड स्क्रबिंग वगैरह जो नहीं बताया था मैडम ने अपने को, है ना, यस मैम। एल्बो तक के पूरा हाथ को अच्छे से वॉश करते हैं बीटा स्क्रब से, है ना, और फिर देन वी डोंट टच एनीवेयर, मतलब जो हमने जो पार्ट अपने बॉडी का अच्छे से क्लीन किया है उसको कहीं टच किए बिना वी एंटर द ऑपरेशन थिएटर, है ना। फिर वहां पे यस क्या बोलते, देन वी वियर द ऑटोक्लेव्ड लिनन, मतलब जो ऑलरेडी स्टरलाइज्ड गाउन है वो पहनेंगे, स्पिरिट या फिर वो क्या बोलते हैं स्टीरिलियम से क्लीन करेंगे, एंड देन विल गिव वियर द ग्लव्स, सो दैट इज कॉल्ड द स्क्रबिंग. गॉट इट? हेलो, गॉट इट? यस मैम, गॉट इट, Okay. गो अहेड। So now what more? लाइक ऑपरेशन का जो टेक्निकल पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अनइंटरप्टेड रहना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं रहना चाहिए, और बुक में दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी लोड 6 to 8 kV का रहना चाहिए, है ना, और लाइक जो सॉकेट्स हैं वो बराबर रहने चाहिए एम्पल अमाउंट में, है ना, ये तो यहाँ का वायर वहां से जा रहा, वहां का वायर वहां से जा रहा, इमरजेंसी में फिर बहुत हैवॉक हो जाता, क्योस क्रिएट हो जाता है ना। तो जैसे एनेस्थीसिया इक्विपमेंट है, मॉनिटर है, और वो उसके सॉकेट्स अलग रहने चाहिए, है ना, और जो सर्जिकल जैसे कॉटरी ये वो सब है उसके सॉकेट्स अलग रहने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द सर्विस पेंडेंट. ओके, जैसे एनेस्थीसिया मशीन है, कुछ इसमें एक्सरेज भी निकाले जाते हैं, सियाम रहता है, तो उस सब चीजों के लिए सॉकेट्स डिफाइंड रहने चाहिए, और उनके जो वायर्स हैं वो ऐसा बीच बीच में इंटरमिंगल्ड नहीं होना चाहिए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड सेकेंड थिंग important is air condition of the OP. Anybody can tell me what is like what should be there in the specific about the air condition in the operation theater? Can anybody tell about this thing, air condition? Air condition is very important thing in the operation theater, क्योंकि जनरल फैंस या ये सब चीज अपन नहीं लगाते ओटी में, है ना, ठीक है, और उसमें एक हेपा फिल्टर्स भी लगाते हैं. वो हेपा फिल्टर इज हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टिंग फिल्टर्स, ताकि जो जैसे जो एयर एसी फेंक रहा है उसमें इन पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए ऐसे, जो कि ऑपरेशन साइट पे जाके इन्फेक्शन करे, ठीक है, और उसका एग्जॉस्ट भी ऐसा रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा मतलब द एग्जॉस्ट इज एट हाइट नॉट मोर देन 12 to 18 inches above the floor. ओके, तो जो नीचे का जो भी डस्ट है ये है वो ऑपरेशन फील्ड से एकदम दूर रहना चाहिए, ठीक है. यस मैम। ओके, और जो मतलब ओवरऑल वॉल्स और फ्लोर्स जो रहते हैं वो एंटी ग्लेज रहना चाहिए, और उसका अच्छे से प्रॉपर केमिकल से अपन क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रो कंडेसिव मतलब जो अर्थिंग और ये सब चीजें प्रॉपर रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट्स होंगे, वो भी नहीं होना चाहिए. सो और लाइक जो ओटी बाकी इक्विपमेंट जैसे रहते हैं ओटी में, ये तो अपन ओटी के सराउंडिंग की बात की. ओटी में क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, एक मोटे मोटे में क्या क्या रह सकते हैं, आप बताइए. हैज एनीबडी सीन द पिक्चर ऑफ द ओटी? यस मैम। कैन यू टेल मी लाइक व्हाट मेजर थिंग्स आर देयर इन द मोटे मोटे में क्या क्या चीज रहती है? मैम ओटी में मैम मतलब जनरल मशीन्स रहती है, 1 मिनट मैम। राइट, ओटी एक मैम तो उसमें देखो ऑपरेशन, इंस्ट्रूमेंट बताना है ना, क्या क्या रहता है इसमें? हाँ जैसे मैम के इंस्ट्रूमेंट सीजर
मैम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, टूल रहती है, डिवाइस रहती है, Right. स्पेसिफिक एक्शन जो रहते हैं उसके लिए रहते हैं, और सर्जरी ऑपरेशंस के लिए रहते हैं, और भी और भी बहुत सारे आइटम्स रहते हैं। देखो OT में इम्पोर्टेंट है कि ओटी टेबल रहेगा पहले, है ना। ओटी टेबल में ही तो पेशेंट को लेंगे ना, तो ओटी टेबल जो रहता है ना, ओटी टेबल यू कैन अंडरस्टैंड ना, जिसमें पेशेंट सोया रहता है ना, जिसमें पेशेंट को लेते हैं हम लोग ऑपरेशन के लिए, है ना। तो ओटी टेबल के भी बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं, है ना। वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड रहता है, रिमोट ऑपरेटेड रहता है ना, और कुछ कुछ हम लोग हैंड ऑपरेटेड रहता है मैन्युअली। कुछ कुछ इसमें ये है कि जो सियाम जैसे एक्सरे मशीन, उसमें अपन डाल के एक्सरे भी लेते हैं ड्रॉप, है ना, तो वो रेडियो कंपैटिबल ऑपरेशन टेबल रहते हैं। तो ओटी टेबल्स भी बहुत, मतलब 50,000 से 50 लाख तक के ओटी टेबल आते हैं, डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द लाइक स्पेसिफिक क्या तुमको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। ओके क्योंकि अभी नाउअडेज लाइक हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरी लाइक कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, इवन पीडियाट्रिक सर्जरी, सब चीजों के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, उस हिसाब से ऑपरेशन टेबल भी डिजाइन रहते हैं, है ना। इवन ओटी लाइट भी जैसे पहले के जमाने में दिखाते थे, एक ट्यूबलाइट वो लगा देते थे बल्ब, या वो ऐसा डोम वाला रहता था, अभी वो सब थोड़ा चेंज हो गया। ऑपरेशन लाइट में भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आ गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी, है ना। जैसे और वो मूवेबल रहती है, ओटी लाइट मूवेबल रहती है, ताकि वी कैन पोजीशन द लाइट टू द ऑपरेशन ऑपरेटिव फील्ड, है ना। उसमें एक ऐसा हैंडल रहता है, उसको पकड़ के अपन मूव कर सकते हैं, सो दैट जहां पे ऑपरेशन करना है वहां पे अपन ओटी लाइट फोकस करेंगे, है ना, ठीक है। अब नाउ if anybody wants to ask anything, नो मैम। can any no, okay, so like ओटी स्टाफ जो रहता है, वो ओटी स्टाफ बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड ओटी स्टाफ रहता है, मतलब जनरली जैसे अनक्वालिफाइड या अनट्रेन्ड स्टाफ को वी कैन नॉट अलाउ इन द ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में कैसा है, अपने को एक्सपर्टीज हेल्प लगती है, दोज हु आर ट्रेन्ड इन द सर्जिकल असिस्टेंट्स, है ना, कि उसको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, कौन सा ड्रम लगने वाला है। इवन एनेस्थीसिया के लिए जो असिस्टेंट रहेगा, वो पर्सन भी प्रॉपरली ट्रेन रहना चाहिए, है ना, क्योंकि एक बार एनेस्थीसिया इंड्यूस करते हैं तो एक जो असिस्टेंट रहता है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है ना, पेशेंट की लाइफ और डेथ का सवाल रहता है ना। तो जो ओटी स्टाफ रहता है, दे हैज टू बी वेरी मच ट्रेन्ड, और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लाइक कितने 2 ओटी है तो 3 स्क्रब नर्स रहना चाहिए, और एक नर्स भी जो स्क्रब हुई उसको भी हेल्प करने के लिए कि ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्पिरिट चाहिए, या ये डॉक्टर को ये हेल्प चाहिए, उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा नर्स रखी जाती है ना। और उसके साथ साथ एक सुपरवाइजर मतलब हेड नर्स रहती है, जो एक्चुअली क्या हो रहा है, और इन लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा हेल्प लग रही है, या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर की हेल्प लग रही है, या और कुछ लग रहा है, वो सुपरवाइज करती है, ओके। ओके मैम। स्टाफिंग। हाँ, या ओटी स्टाफ and the important ingredient other than this thing, other machines like जो मल्टीपैरा मॉनिटर लगाते हैं, एनेस्थीसिया मशीन रहती है ना, जैसे कॉटरी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है ना, जो मशीन्स रहती हैं, तो उसका ऐसा बीच में यदि उसमें प्रॉब्लम आ गया तो पूरा ऑपरेशन में डिफिकल्टी हो जाती है ना। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रही, तो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हमको पहले ही चेक करना चाहिए, है ना, या और जैसे मेजर कोई भी सर्जरी है उसके पहले, जैसे सेंट्रल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बराबर कनेक्शन है कि नहीं, एनेस्थीसिया मशीन बराबर परफेक्ट है कि नहीं, यदि लॉन्ग सर्जरी रहती है तो उसमें वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालते हैं तो वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है कि नहीं। इसलिए जैसे एनएबीएच के एक्रेडिशन में ये सब चीजें हैं कि प्री ऑप चेकअप ऑफ द ओटी, ओटी में पूरा हर चीज पेशेंट का रिकग्नाइज करना, इक्विपमेंट बराबर है कि नहीं, ये सब चीजें चेक की जाती है। उसके भी पेशेंट को भले ही सर्जरी पोस्टपोन कर दो, बट हमारे इम्पोर्टेंट है पहले, है ना, ओके।
Yes, ma'am. Now, this is like all the about the maintenance of the operation theater, like equipment, asepsis, staff, and the important thing is OT medicine, है ना, drugs like. स्टाफिंग तो तो सबको पता ही होगा जनरली, क्योंकि स्टाफ तो सबको पता ही होता है हाँ, स्टाफ में क्या क्या आते हैं, नर्स वगैरह ये सब जो भी डिपार्टमेंट में। हाँ, और अभी ओटी में जैसे ऐसा नहीं कि छोटे छोटे इंजेक्शन के लिए भागना पड़ रहा है, इसीलिए ओटी में एक ड्रग